the entire world to know that it's Modi ji only who can come back and who should come back. Then we are going. That's what they want to show today. That's what they want to hear for what they have shown in all the 7 phases. Ma'am, you have performed puja here. So what do you pray? Today I pray that our Modi ji should come out with 400 par, because he is the embodiment of justice, is the embodiment of truth, and he is the man who can bring the future to this nation Bharat. And I also requested Mother Goddess to let the justice prevail, and even in Hyderabad Lok Sabha Parliament, let the justice win. Ma'am, there were cases filed against you on the voting day, and you're also going to be counting of votes today. I've got the government, Congress government here has made me used to get to all these kind of threats. So now I don't care anymore with AMIM and Congress. I'm going to stand with justice and nothing can stop me. 400 पार होकर ही रहेगा. जीत होगी होगी होगी, क्योंकि 400 पार करना मोदी जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है. जिस प्रकार से उन्होंने देश को अपनाया है, देश के लिए वो काम किए हैं, लोगों के दिल में उनका ऑटोग्राफ है. जो वोट दबा है वो दिल से दबा है मोदी जी के लिए. सो 400 पार कर ही रहेंगे और दिखा कर ही रहेंगे हम. आई एम प्रीटी एक्साइटेड, and all of them who have voted for BJP in the entire country are looking forward for especially this particular seat, that we win and bring justice to Lok Sabha Parliament Hyderabad. We all know that Modi ji in the entire 2 terms have tremendously worked, meticulously worked for the nation. And he has not just worked and left the love, but he has also left a beautiful autograph of Modi Ka Parivar in the hearts of all Bharatiya. I'm so sure that the entire country today would have been in their own prayers, blessing and wishing for 400 par. And these blessings have a tremendous storm of positivity in the nation, along with winning Hyderabad seat. Today I prayed that let the justice prevail, let the people's pain get rid of this 3rd time under our Modi ji's rule. And I prayed that let there be no more hatred speeches in the nation. Let there be no more dividing the nation on the name of religion. And let there be no more corruption in this country. And let there be truthful party like BJP under Modi ji's leadership to take this country towards Ujjwal Bharat. What would be your message to the people of Hyderabad? I would want to tell the entire Hyderabad voters that, all my dear voters, you've really done a tremendous job. In spite of so many hurdles, you still made it a point to come out on May 13th. You have tried to show your best. You've been really lovely. You've been wonderful. You really have cooperated as a voter with me. I love my Hyderabad constituency voters, irrespective of all the religions, all the caste, creed, gender, from the all 7 assembly constituencies. If there has been any discrepancies, it has been only from the state government and not by my beloved voters. कैंपेन था, नॉर्मल कैंपेन था, मगर बीजेपी की तरफ से जो तरीक़ेकार अपनाया गया था कैंपेन का, वो बड़ा ही गलत था, वल्गर था, कम्युनलिज्म को प्रमोट कर रहा था. और इसीलिए हैदराबाद की जनता ने एक तारीखी वर्डिक्ट बीजेपी के खिलाफ दिया है कि 3,37,000 की मेजॉरिटी से यहां पर बीजेपी को शिकस्त हुई. तो यही इनका कैंपेन, चाहे वो प्रधानमंत्री का कैंपेन रहा हो या यहाँ मुकामी बीजेपी का रहा हो, उसको हैदराबाद की आवाम ने रिजेक्ट किया. मैं शुरू से कह रहा था कि ये कैंपेन नहीं चलेगा, क्योंकि अब पॉलिटिकल डिफरेंसेस जरूर हैं और रहेंगे, मगर अगर आप शहर के अमन को बिगाड़ने के लिए और नफरत की दीवारों का इजाफा करेंगे तो आवाम उसको रिजेक्ट करी, और वही हुआ. सर, जो पूरे देश भर में अखिल भारतीय स्तर पे जो रिजल्ट आए, जो दिख रहा है, जो सियासी सूरत हाल बनी है, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी, लेकिन वो उन्हें हासिल नहीं हुआ. दूसरी तरफ कांग्रेस को एक ठीक ठाक बढ़त मिली है. नहीं, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, और खासतौर से पिछले 5 साल में 2019 से 2024 तक जो बीजेपी की हुकूमत के नाकारकर्दगी, उनके
गलत फैसले, अवाम दुश्मन फैसले, किसानों को तंग करना, नौजवानों को रोजगार से महरूम कर देना, महंगाई को कंट्रोल नहीं करना, चीन जो हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा है उस पर आंखें बंद कर लेना, तो ये ऐसी चीजें थी जो अवाम में चल रहा था इसके सिलसिला। और फिर 400 का नारा देने के बाद संविधान को खतरा, और ये बात अवाम में चले गई, खास तौर से जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर से मोहब्बत करने वाले हैं, संविधान के ऊपर नाज करने वाले हैं, तो ये सब चीजें उनके लिए महंगी पड़ी हैं। और बहुत से लोग, मुझे लगता है कि जो ये समझते थे बीजेपी नहीं हारेगी, अब आप देखेंगे कल से उनका और ग्राफ गिरेगा। सर, आप क्रेडिट, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बार बार पूछा गया, आप क्रेडिट क्यों नहीं देते हैं इंडिया अलायंस को और कांग्रेस को इस सियासी सूरत हाल के लिए? मेरे ख्याल से जो माहौल था देश में, बीजेपी को इतनी भी सीटें नहीं आनी चाहिए थी। उनको हम लोग, अगर ये लोग सही काम करते तो 150 में सिमट देते हैं लोगों को। तो ये मेरा मानना है, क्योंकि इतना जबरदस्त माहौल था बीजेपी को हराने के लिए। मगर बहुत से लोग, चाहे बोलिए अब तो खैर अब पोस्टमार्टम कर रहे, ऐसा होगा, मगर ये बेहतरीन मौका था। आप ये कहना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस ने ठीक से घेरा नहीं, अगर आपकी राय लिए होते या आपको नहीं, सवाल मेरी राय का नहीं है, सवाल मुझे साथ लेते या नहीं लेते मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर एक बना माहौल था, बीजेपी को सरकार नहीं बनाने से हम रोक सकते थे, और जनता भी चाह रही थी, तो शायद उसमें हम लोग नाकाम साबित हुए। मगर अब हमको तो ब्लेम नहीं कर सकते आप। एक बात साबित हो गई कि इस देश में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, न कभी रहेगा। आपका सबसे पसंदीदा सूबा है उत्तर प्रदेश, आप बार बार जाते हैं उत्तर प्रदेश गए। उत्तर प्रदेश में भी काफी चौंकाने वाला रिजल्ट आया, जहां कहा जाता था कि योगी और मोदी की जोड़ी, और डेवलपमेंट भी हुआ है वहाँ ठीक ठाक, लेकिन इस तरह के रिजल्ट की उम्मीद बीजेपी भी नहीं की थी, खासतौर से उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश को बोला जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि एक बेहतरीन मौका पूरे देश में था बीजेपी को मुकम्मल हराने का, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या देश के बड़ी बड़ी प्रदेश हो। तो उत्तर प्रदेश में जाहिर है अब लोग ये समझ रहे थे कि इनविजिबल है, इनविजिबल को होता नहीं है। जब इंदिरा गांधी को लोग हरा सकते हैं, जब बड़े बड़े नेताओं को हरा सकते हैं, तो ये लोग क्या हैं। तो इसीलिए जहां से, जिस प्रदेश से प्रधानमंत्री खुद आते हैं, आज वहीं पर उसके अतराफ में जितनी सीटें हार गए, बनारस के अतराफ में कितनी सीटें हार गई बीजेपी, आप देख लीजिए ये कितनी सीटें हार गई। माने जो बोलते थे कि नहीं अतराफ पूरा उनका बड़ा जोर है, शोर है, ना जोर है, ना शोर है, ना कुछ नहीं, अब तो सन्नाटा है। मगर क्या प्रधानमंत्री एक बैसाखियों के सहारे सरकार चलाएंगे? अगर वो बनाते हैं मोदी जी, तो देखना पड़ेगा। बैसाखी किसको बोल रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू? नहीं, देखिए जो 400 की बात कर रहे थे, जो नहीं, सुनिए बैसाखी दोनों तरफ होती है। नहीं, सुनिए, जो 400 की बात कर रहे थे, जो बोल रहे थे कि सब खत्म हो जाएगा, और जो कह रहे थे कि जो फुला भक्त होगा वही दिल्ली में राज करेगा, अब किसके भक्त बनेंगे ये? अब किसके इशारे पे काम करेंगे? तो ये देखना पड़ेगा, ये देश देखना चाह रहा है। जो बुलंदबांग दावे करते थे, आज वही उनके लिए गले का सांप बन गया है। आपने अभी एक स्टेटमेंट दे दिया कि बैसाखी के सहारे चलाएंगे। बैसाखी कौन? बहुत है, बहुत होंगे, आप देखते जाइए। कल के बाद बहुत सी चीजें, अभी तो पूरा मुकम्मल रिजल्ट तो नहीं आया ना। हमको लगता है कि बीजेपी 272 का मार्क नहीं टच करेगी, लगता है। जब हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊं, मगर जब काउंटिंग हो रही है, बड़े बड़े उनके नेता हार रहे हैं। आप मुजफ्फरनगर से हार गए संगीत सोम, में मंत्री रहे उनके, जो कहते थे कि कुछ नहीं होगा, वो हार गए हैं। तो देखिए सर, आपके तेलंगाना के बाजू में आंध्र प्रदेश है, वहाँ से भी बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट आया। सत्ताधारी पार्टी बहुत कम में सिमट कर रह गई है, क्लीन स्वीप मिला है टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को। हाँ, ये जनता का, आवाम का फैसला है, इसकी इज्जत करनी चाहिए। और हमारी नेक तमन्नाएं हैं नई हुकूमत की आंध्रा में जो बनेगी, और वो जो वादे किए वो पूरे करेंगे हम आंध्रा की आवाम से। और मुझे यकीन है कि जगन मोहन रेड्डी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे
और उनके पास तो अभी वो बहुत नौजवान हैं, टाइम है उनके पास, वो उन तमाम चीज़ों को सुधारेंगे। सर, अंतिम और सबसे अहम सवाल, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब देंगे। जो इंडिया अलायंस का इंडिया अलायंस जिनके खिलाफ थी, एनडीए के खिलाफ थी, खासतौर से बीजेपी के खिलाफ थी, नरेंद्र मोदी के पॉलिसीज़ के खिलाफ थी, आप भी कमोवेश आप भी विरोध में थे। अगर इंडिया अलायंस की तरफ से आपको न्योता मिलता है तो आप जाएंगे? देखिए, ये इफ्स एंड बट्स एंड पॉसिबिलिटीज की बात मैं नहीं कर सकता, मगर मैंने चुनाव के दौरान ही इस बात को कह दिया था कि अगर कोई ऐसा मौका आता है कि नॉन एनडीए और एक नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए किसी को प्रधानमंत्री बनाने का मौका मिल सकता है तो हम यकीनन उनका साथ देंगे, क्योंकि ये फैसला मुल्क के और संविधान के मफाद में होगा। अब ये आएगा नहीं आएगा नहीं मालूम, मगर अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखेंगे 10 साल से 2014-2024 तक, शायद मैं वाहिद एमपी और पार्टी हम हैं जो नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट में हर बिल की मुखालिफत की। तो अब ये मैं तो उसका हिस्सा नहीं हूँ, ना मेरी कोई दुनिया ख़त्म होने वाली है अगर मुझे मौका मिलता है, नहीं, मगर लेकिन इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि आप नहीं कोई इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने डायरेक्टली पिछले 10 साल में बीजेपी का अपोज किया है पार्लियामेंट में, चाहे CAA का कानून हो, UAPA का अमेंडमेंट हो, ट्रिपल तलाक का बिल हो, राइट टू इंफॉर्मेशन का अमेंडमेंट हो, कई जगह पर हमने अपोज किया है उसको। तो इन लोगों को रोकने के लिए कोई सरकार अभी नहीं, अभी क्या होगा, क्या नतीजा आएगा, अभी तो काउंटिंग चल रही है, देखेंगे जब। मगर हम नहीं चाहेंगे कि, हमने पब्लिकली इस बात को कहा कि हम नहीं चाहेंगे कि तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, क्योंकि वो 10 साल में बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। और किसी हद तक आप देख भी रहे हैं कि जो 400 पार की बात कर रहे थे, आज तो सिमट के रह गए वो। तो मतलब चेहरा कोई भी होगा नहीं, ना ऐसा देखिए, नहीं देखिए, सब आप नहीं चाहेंगे तो किसी और को सपोर्ट करेंगे। देखिए, चेहरा होगा नहीं होगा, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ये तो पूरा काउंटिंग के बाद पता चलेगा ना। अभी कैसे बताएंगे? कोई भी ना आप बोल सकते ना मैं बोल सकता हूँ उस बात। एक चीज और, MIM पिछले लोकसभा चुनाव में 2 सीटें हासिल की थी, इस बार आपको शिकस्त मिली है, 2 सीटें, औरंगाबाद की सीट आप हार गए हैं, उस पर क्या कहना है? नहीं, अफसोस की बात है कि मैं अपने एक बाजू से महरूम हुआ हूँ। इम्तियाज जलील को कामयाबी नहीं मिली। औरंगाबाद की आवाम का फैसला है और मेरा मानना है कि इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद के लिए बड़ी मेहनत की, बड़े अखलास के साथ, और पार्लियामेंट में उनकी कमी यकीनन मुझे महसूस होगी, आवाम को महसूस होगी, क्योंकि औरंगाबाद की नुमाइंदगी वो कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो और मुझे यकीन है कि और इम्तियाज जलील जो आज उनको कामयाबी नहीं मिली,